हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 10 ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਰ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ कि अगर तुहाडे कोल एक ट्रायंगल है, सपोज इस ट्रायंगल को नाम दे देने ए बी सी, अगर इनकी दो साइड्स इक्वल है, मतलब आपां नूं गिवन की है कि आपां नूं बोलिया गया कि ए बी इक्वल टू ए सी है। अगर दो साइड्स इक्वल ने तो आ साइड के ऑपोजिट एंगल आ वाला और आ साइड के ऑपोजिट एंगल आ वाला की होगा इक्वल। देन अपने कोल ए सी के ऑपोजिट देखो एंगल केड़ा है, एंगल बी है, और ए बी के बिल्कुल ऑपोजिट एंगल की है, एंगल सी है, दोनों की हो गए इक्वल है। तो एक रिजल्ट चलूगा अपना की है कि अगर तुहाडे कोल दो साइड्स इक्वल ने तो उन्हां दे ऑपोजिट एंगल की ने इक्वल। तो मैं बना दिता, देखो अगर अपन ने बोलिया गया ए बी किंदे कोल है ए सी दे, तो ए सी दे बिल्कुल ऑपोजिट एंगल बी है और ए बी दे बिल्कुल ऑपोजिट एंगल की है सी है, दोनों की हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੇਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, cos find the value of cos 45 degree upon secant 30 plus cosecant 30। तो ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। cos 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/√2, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ 1/√2 ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਏਗੀ 2/√3, और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ 2। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ 2/√3 ਔਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ +2। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2/√3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √3, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2√3 ਔਰ ਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 1/√2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/√2, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ √3/2 + 2√3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। 1/√2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ cos 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ, ਫਿਰ secant 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 2/√3, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 2। ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ √3/√2 ਨਾਲ ਸੀਗਾ। देखो आ चीज़ सीगी अंदर रैशनलाइज कितना करोगे यही चीज़ बट नैगेटिव साइन दे नाल, मतलब 2 - 2√3 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो। इत्थे 2 + 2√3 ऑलरेडी पिया होया सीगा, नाल तुसी मल्टीप्लाई कर दिता इंदे 2 - 2√3। असी रैशनलाइज कर रहे हैं किहड़ी वाली चीज़ नूं, इहनूं रैशनलाइज कर रहे हैं इस चीज़ दे नाल। आ चीज़ नाल मल्टीप्लाई किया और आ चीज़ नाल असी डिवाइड किया। सेम वैल्यू लैनी होंदी है, बट जिहड़ा साइन जे अंदर पॉजिटिव है तुसीं नैगेटिव नाल मल्टीप्लाई डिवाइड करदे हो, जे इत्थे नैगेटिव पिया तो पॉजिटिव नाल मल्टीप्लाई डिवाइड। क्योंकि इत्थे हुण प्लस पिया सी तो मैं सेम वैल्यूज़ लैके माइनस नाल इहनूं रैशनलाइज कर रहा। देखो आ तो इदां ही लिख दिंदे आ, √3 नाल आ गया 2 - 2√3, इत्थे आ गया √2 बार, यह की बन गया a + b नाल आ गया a - b। देखो सेम ही चीज़ लिखी हुई है, a इत्थे भी a वही है, आ b है, उत्थे भी b है, सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है। तो किंदे कोल होंदा है a² - b², मतलब 2 दा स्क्वायर माइनस 2√3 दा स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को एज इट इज़ लिख दिया, √3 2 - 2√3 अपॉन √2। देखो 2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ 2√3 × 2√3, दो बार लिख दिए। 2 × 2 क्या हो गया 4 और √3 × √3 क्या हो गया 3। तो इनका आंसर क्या आ गया 12। सिर्फ इनके स्क्वायर की वैल्यू कटनी सी, मतलब इन्हें दो बार ही लिख दिए। 2√3 2√3 लिखा
2 ਨਾਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 4, √3 ਨਾਲ √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3, ਤਾਂ 4 × 3 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 12, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 12। ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ √3 2 - 2√3 अपॉन √2। ਹੁਣ 4 - 12 प्लस माइनस क्योंकि साइन ਵੱਡੇ वाले ਦਾ 4 ਵਿੱਚੋਂ 12 गए कितना आ गया 8, तो ये आ गया -8। ठीक है, तो इस चीज़ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, क्योंकि हले भी अपने को आंसर सिंपलीफाइड फॉर्म ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हले भी √2 डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ √3, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2 - 2√3 अपॉन √2 ਨਾਲ ਹੈ -8। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ रूट ही चीज़ पई है, तो अपन ਨੂੰ रैशनलाइज करना पऊगा। तो मैं मल्टीप्लाई विद √2 कर देना, डिवाइड बाय √2 कर देना। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆ √3 और आ √2 मल्टीप्लाई होके ਕੀ ਆ ਗਿਆ √6 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 2 - 2√3 और थल्ले R2 और R2 आपस ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਏ ਆ √2 और आ √2 ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ -8। ਇਹ ਆ ਗਿਆ √6 2 - 2√3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया -16। से कुछ नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर ही √2 सी रैशनलाइज कर देता। सानू पता है √2 है √3 ना मल्टीप्लाई होकर √6 आ जाएगा। आ चीज़ एज इट इज लिखी है। आ √2 ना मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया 2 नाल पे -8, तब 2 × 8 के अंदर 16 नाल माइनस का साइन आ गया। ठीक है, हम आगे सॉल्व करते हैं। √6 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 - √3 ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ √6 ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ -16। ਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 - √6 अपॉन -8 ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੌਰੀ -√3 ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ √6। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 - √3 अपॉन 8 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ √6। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਤਾਂ √3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੂਗਾ ਔਰ 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਹੈ 8 ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ √6। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ 45 ਡਿਗਰੀ। मतलब अपन एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ एक्यूट एंगल है 45 डिग्री। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब sin cos tan cot cosecant और secant ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ट्रायंगल ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿ एक्यूट एंगल ਕੀ ਹੈ 45 डिग्री है। तो मैं इस एंगल ਨੂੰ 90 डिग्री, सपोज इस ट्रायंगल ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ABC है, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ एंगल 45 डिग्री ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ठीक है जी, एक एंगल 45 डिग्री दिता है। तो आप देखो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। सानू पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जड़ा है सारे नू जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री होएगा। सानू एक एंगल दिता है 45 डिग्री A, B सानू पता है 90 डिग्री है और C सानू पता नहीं सीगा, बट इन्हां नू जोड़ के कितना आ गया 180 डिग्री। सानू पता है इन्हां दोनों जोड़ के कितना आ जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री विच C ऐड करोगे तो कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो इत्थों दी एंगल C की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 135 डिग्री जो कितना आ गया 45 डिग्री। तो मतलब आ एंगल भी की है 45 डिग्री। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਵੀ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦੋ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ अपने को आ दो एंगल इक्वल है, ठीक है, तो एंगल दे बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड भी की होन गया इक्वल होन गया। तो इन दे ऑपोजिट साइड आ वाली और इन दे ऑपोजिट साइड आ वाली की होन गया इक्वल होन गया। ठीक है, आप केड़ा एक्यूट एंगल कंसीडर किया है 45। सानू पता है बिल्कुल सामने की होगा परपेंडिकुलर, आ होगा बेस और यह होगी हाइपोटेन्यूज। हुण आपां नूं बोलिया गया है कि आ और आ इक्वल है, तो आप लेट कर लेने आ कि साडे कोल ए भी कितना है कुछ भी इक्वल है, लेट इट बी सपोज A सेंटीमीटर है। तो इनका मतलब साडे कोल जेड़ा BC है वो भी की आ गया A सेंटीमीटर। मैं इत्थे मार्क भी कर देना, इत्थे लिख देना आपां A और आ भी A।
सानू पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम की बोलेगी कि हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हुण देखो बेस की वैल्यू भी कि साडे कोल है a ते परपेंडिकुलर की वैल्यू भी की है a, तो यह की आ गया 2 टाइम्स a स्क्वायर आ गया। इत्थों दी ac की वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। सानू पता है a स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो a होगा बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही होगा। तो मैं इत्थे भी वैल्यू लिख देना स्क्वायर रूट ऑफ 2a। हुण साडे कोल साडी तीनों साइड्स निकल आई हैं। हुण आपां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर सकते हैं। देखो किहड़े-किहड़े ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कढनियां ने आपां नूं कढना है साइन कढना है, कोसाइन कढना है, सीकेंट कढना है, कोसीकेंट कढना है। बट किहड़े वाले एक्यूट एंगल ही आ 45 डिग्री वाले लिए, ठीक है। तो मैं लिख देना वा साइन a जो कि एक्चुअली साइन 45 डिग्रीज है, ਉਹਦੇ ਲਈ वैल्यू कढनी है। ऐदा ही आपां नूं cos a कढना है जो कि एक्चुअली cos 45 डिग्री, क्योंकि अपने कोल a 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री इहदी वैल्यू कढनी है। एक tan की वैल्यू कढनी है tan a जो कि अपने कोल tan 45 डिग्रीज। पहले आपां ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कढदे हैं, क्योंकि सानूं पता जे इन्हां दी वैल्यू कढ ली बाकी तां इन्हां दे उल्टे ही हुंदे ने। तो tan साइन की होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर कितना है साडे कोल a और हाइपोटेन्यूज कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 2a। a नाल a कटिया गया तो साडे कोल वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 2। एंड मतलब साडे कोल sin 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 2 आ गई। ऐदा ही cos की होंदा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो साडे कोल बेस कितना है a, हाइपोटेन्यूज कितनी है रूट 2a। तो मैं बेस की जगह लिखा a और इनकी जगह लिखा रूट 2a। a नाल a कटिया गया कितनी वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 2। मतलब मेरे को cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 2। sin 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन रूट 2। tan क्या होंदा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो कितना अपने को a और बेस कितना है वो भी a है। तो मतलब a अपॉन a नाल a कटिया गया कितना आ गया 1। एना तो साडे कोल tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अपन नूं कढने किहड़े ने बाकी तीन भी होर कढने ने। जेड़ा तो अपने कोल कोसीकेंट हुंदा है कोसीकेंट 45 डिग्री वो किंदा उल्टा होगा। कोसीकेंट क्या हुंदा है साइन दा उल्टा हुंदा है। तो इहदा मतलब साइन 45 डिग्री का उल्टा कर दिए। जे साइन 45 का उल्टा करोगे मतलब 1/√2 का उल्टा करोगे तो √2 आ जाएगा। ऐदा ही आपां सीकेंट करते हैं। सीकेंट 45 डिग्री वो किंदा उल्टा होंदा है cos का उल्टा होंदा है। तो लिखा cos 45 डिग्री जो कितना आ जाएगा cos 45 पर कटिया 1/√2। 1/√2 का उल्टा की हो गया √2। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केड़ी रहेगी अपने कोल cot। cot 45 डिग्री किंदा उल्टा होंदा है tan का उल्टा होंदा है, ठीक है जी। तो tan की वैल्यू कितनी है 1। 1 का उल्टा की होगा 1 है ना। तो साडे कोल cot 45 डिग्री की आ गया 1 आ गया। तो अब मैं दोबारा साफ करके लिखदा सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि असीं कड्डियां ने एक बारी शॉर्ट इच करके लिख दिंदे आ। देखो ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ वैल्यू कड्डी है, असीं कड्डी है sin 45 डिग्रीज। उनकी वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 1/√2। cos 45 डिग्री वो भी कितनी आ गई 1/√2। tan 45 डिग्रीज वो कितना आ गया सी अपने कोल 1। cot 45 डिग्री वो कितना आ गया सी 1। कोसीकेंट 45 डिग्री कितना आ गया सी √2 ते सीकेंट 45 डिग्री कितना आ गया सीगा वो भी आ गया सी √2। साडे को 1 2 3 4 5 6 ਦੇ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर लिया 45 डिग्री वास्ते। इसी तरीके नाल अगर तुहानू बोलन 30 डिग्री वास्ते कड्डो 60 डिग्री वास्ते कड्डो ते 90 डिग्री वास्ते कड्डो या फिर तुहानू 180 डिग्री वास्ते बोलन या 0 डिग्री वास्ते बोलन। वैसे तो देखो आप 90 और 180 दी नहीं कड्डांगे क्योंकि एक्यूट एंगल नहीं हैगे। बट जे सानू 0 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री वास्ते बोलणगे सेम तरीके नाल करांगे। बट आपां की करदे आ इन्हां लई ना एक टेबल ही बना लैंदे आ जिंदे विच आपां सारी वैल्यूज लिख लांगे फिर वही टेबल नूं आपां यूज़ करांगे। देखो टेबल किवें बनदा है वो आपां हुणे डिस्कस करदे हां। हुण आपां देखिया सी sin 45 डिग्री कड्ढिया सीगा cos 45 कड्ढिया सीगा
tan 45 ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ 45 ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ 45 ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ acute angle 0 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, 30 ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, 45 ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, 60 ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਾਂ 90 ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 0 1 2 3 4। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ sin 45 cos 45 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖ ਰਿਹਾ 0 1 2 3 4, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਓ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਖੀ 0 1 2 3 4, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0/4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਲੋਗੇ ਆਨਸਰ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। 1/4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/2। ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/√2 ਔਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ 4 ਕੱਟਿਆਗਾ 1 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ sin a ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sin 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0, sin 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2, sin 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/√2, sin 60 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3/2 ਤੇ sin 90 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਢਾਂਗੇ। cos ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ 1 ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿਓ √3/2, ਫਿਰ ਲਿਖੋ 1/√2, then 1/2 ਤੇ 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ cos 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, cos 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3/2, cos 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/√2, cos 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਤੇ cos 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ tan। tan ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ sin upon cos ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ sin ਔਰ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। 0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0, 1/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3/2। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1/2 ਨੂੰ √3/2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 1/2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3/2, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/2, ਇਹ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ √3, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1/√3। 1/√2 ਨੂੰ 1/√2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 1, √3/2 ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ √3। 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਕਦੀ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ tan ਜੋ ਕਿ ਸੀ sin upon cos ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ tan 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0, tan 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 1/√2 ਤੇ tan 1/√3 ਸੌਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ, ਹੁਣੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ 1/√3 ਆਇਆ ਸੀ। tan 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, tan 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3 ਤੇ tan 90 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ sin ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ sin ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਿਓ। 0 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1/0, ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 0 ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 1/2 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, 1/√2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √2, √3/2 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ 2/√3 ਤੇ 1 ਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √2, ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2/√3 ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਕੈਂਟ a, ਉਹ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। cos ਦਾ ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ 1 ਦਾ ਉਲਟਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1, √3/2 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 2/√3, 1/√2 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ √2, 2 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1/2 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ 0 ਦਾ ਉਲਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਕੈਂਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1, ਸੀਕੈਂਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2/√3, ਸੀਕੈਂਟ 45 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √2, ਸੀਕੈਂਟ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਤੇ ਸੀਕੈਂਟ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ cot, ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਦਾ ਉਲਟਾ tan ਦਾ ਉਲਟਾ।
तो tan का उल्टा करिए, 0 का उल्टा की हो जाएगा नॉट डिफाइन, √3 1/√3 का उल्टा की हो जाएगा √3, 1 का उल्टा हो जाएगा 1 √3 का उल्टा की हो जाएगा 1/√3 ਤੇ नॉट डिफाइन ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ 1/0, ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 0/1, ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ cot ਹੈ ਉਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ नॉट डिफाइन, cot 30 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ √3, cot 45 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦਾ है 1, cot 60 डिग्री ਤੇ ਹੁੰਦਾ है 1/√3, cot 90 डिग्री ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है 0। तो इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ एक्यूट एंगल वास्ते कर लिया ने, जेडी कि कुछ एक्यूट एंगल मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ते 90, जिवें ਆਪਾਂ 45 ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ sin 45 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਦੇਖੂੰਗਾ 1/√2। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੂਗਾ tan 90 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਟੇਬਲ ਤੇ ਦੇਖੂੰਗਾ नॉट डिफाइन। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੂਗਾ secant 60 डिग्री ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ 2। तो आ टेबल बड़ा काम होगा, टेबल तुहानू बनाना सिखा दिता, एक बार दोबारा तो रिपीट करते हैं। पहले लिखो काउंटिंग 0 1 2 3 4, फिर सारे कर दो 4 नाल डिवाइड, फिर कर दो स्क्वायर रूट। वो वैल्यूज किन्नियां लिए आउणगियां, साइन लिए आउणगियां, कॉज लिए तुसी ऐसी काउंटिंग नू उल्टा करके लिख देना जो भी तुसी वैल्यूज कड्डियां ने। टैन की होंदा है साइन अपॉन कॉज, तुसी साइन और कॉज की वैल्यू नू डिवाइड कर लो। कोसिकेंट कितना होंदा है साइन का उल्टा, तुसी साइन की जो भी वैल्यूज है बस उन्होंने रेसिप्रोकल करके लिख दो। सीकेंट कितना उल्टा होंदा है कॉज का, तुसी जो भी कॉज की वैल्यूज कड्डियां ने उनका रेसिप्रोकल कर दो। कॉट कितना उल्टा होंदा है टैन का, तो जो भी तुसी टैन की वैल्यू कड्डी उनका रेसिप्रोकल कर दो। तो यह वालियां जनरल वैल्यूज ने जो कि तुहानू याद भी रहनगियां क्योंकि तुहाडे टेबल सामने है। हुण आपां कुछ क्वेश्चन करांगे जिंदे च वैल्यूज यूज होणगियां। तो हुण आपां क्वेश्चन करदे आ। क्वेश्चन देखो की है, फाइंड sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इनकी वैल्यू आप सारी टेबल के विच वैल्यूज लिखिया हुई ने, सिर्फ वैल्यूज यूज करनियां ने। आप देखो सानू पता है cos 60 डिग्री कितना होंदा है √3/2, तो मैं इनकी जगह लिख दिया √3/2। तो cos 30 डिग्री जो देखोगे वो भी कितना होंदा है √3/2, तो मैं इनकी जगह √3/2 लिख दिया। देन है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री टेबल तो देखो वो होगा 1/2, तो cos 60 भी कितना होंदा टेबल तो देखोगे वो भी होएगा 1/2। ठीक है, सिर्फ टेबल दे विचों वैल्यूज देख के ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। cos 60 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ √3/2, सॉरी sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2, cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3/2, sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਤੇ cos 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2। ਹੁਣ √3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके की बन गया 4। सेम तरीके ना 1 और 1 मल्टीप्लाई होके आ गया 1, 2 और 2 मल्टीप्लाई होके की आ गया 4। हुन दो चीज़ों को ऐड करना की करोगे एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया 3 + 1, 3 + 1 की हो गया 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 की आ गया 1। तो तुहाडा पूरी इक्वेशन का आंसर की है 1। ठीक है, ऐसे तरीके ना सेकंड क्वेश्चन है अपने कोल, वो है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्रीज माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इनकी वैल्यू कड्ढनी है। क्वेश्चन देखो की है, दोबारा तो रिपीट करदा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू कड्ढनी है। अगेन टेबल की लोड़ होगी, तुसी टेबल तो देखो tan की वैल्यू 45 डिग्री तो की है 1, 1 का की करना असी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर दिता, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होंदी है √3/2, तुसी टेबल तो देखोगे √3/2 वैल्यू हैगी है। ऐदा ही sin स्क्वायर 60 डिग्री जिहड़ा है उनकी वैल्यू भी कितनी है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर। ठीक है जी, आ प्लस और आ माइनस है तो इक्वल वैल्यू है तो कट्टी गई। तुहाडे कोल की आ गया सिर्फ 2 × 1 का स्क्वायर जो कि आ गया 2। तो तुहाडा इस क्वेश्चन का आंसर की है 2। सेम क्वेश्चन मतलब तुसी बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे, सिंपल सा काम है, असी चकना है सिर्फ टेबल तो वैल्यू सिर्फ यूज करनी है। tan 45 सीगा 1, मैं tan 45 की जगह 1 लिखा, बट क्योंकि उनका स्क्वायर करना तो मैं लिख दिया स्क्वायर। फिर उस तो बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री सीगा, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, करना कि उनका स्क्वायर, मैं उनका स्क्वायर लिख दिता। फिर सी माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 डिग्री कितना होंदा है √3/2, उनका करना है स्क्वायर। आ प्लस ही सी या माइनस ही सी, इक्वल चीज़ा प्लस और माइनस कैंसिल हो गई।
सिर्फ 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 आ गया तो वो क्या आ गया 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2। तुसी सिर्फ टेबल यूज किया है। सो एक क्वेश्चन होर आप ट्राई करते हैं जोड़ा कि टेबल नाल ही होगा। जो आप टेबल बनाया है क्वेश्चन देखो की है cos फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री अपॉन secant 30 प्लस cosecant 30। तो आप वैल्यूज देखो आप आंसर करते हैं शुरू। आप सिर्फ वैल्यूज लिखनिया ने cos 45 कितना होंदा है 1/√2। तुसी टेबल तो देखोगे 1/√2 है। n दी वैल्यू होएगी तुसी टेबल तो देखोगे आएगी 2/√3 और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ cosecant है उनकी वैल्यू क्या आएगी 2। तुसी टेबल देखोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ यही वैल्यूज ने 2/√3 और नाल आ गया +2। ठीक है ਆਪਾਂ देखो थल्ले एलसीएम ले लिए सानू पता है 2/√3 ਦਾ एलसीएम क्या आ जाएगा √3 ਇੱਥੇ आ जाएगा 2 प्लस ਇੱਥੇ आ गया 2√3 और आ की लिखा है 1/√2। ठीक है जी आप इस चीज़ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो क्योंकि चार टर्म्स पईयां ने डिवीजन विच ਇਹ आ गया 1/√2। आ वाली चीज़ जी है ਤੁਹਾਡੀ रेसिप्रोकल हो जाएगी ये आ जाएगा √3/2 प्लस 2√3। ठीक है सिर्फ कुछ नहीं किया असी सिर्फ वैल्यूज पुट कीतियां ने 1/√2 होंदी है cos 45 डिग्री ते वैल्यू फिर secant 30 डिग्री होंदा ਤੁਹਾਡਾ 2/√3 cosecant 30 डिग्री है ਤੁਹਾਡਾ 2 सिर्फ वैल्यूज पुट कीतियां ਇੱਥੇ एलसीएम लिता है आ चीज़ आ गई। ठीक है ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼। देखो रैशनलाइज करते हैं ये आ गया √3/√2 नाल सीगा। देखो आ चीज़ सी अंदर रैशनलाइज कितना करोगे यही चीज़ बट नैगेटिव साइन दे नाल मतलब 2 - 2√3 नाल मल्टीप्लाई कर रहे हो इत्थे 2 + 2√3 ऑलरेडी पिया होया सीगा नाल तुसी मल्टीप्लाई कर दिता इहदे 2 - 2√3। असी रैशनलाइज कर रहे हैं किहड़ी वाली चीज़ नूं इहनूं रैशनलाइज कर रहे हैं इस चीज़ दे नाल आ चीज़ ना मल्टीप्लाई किया और आ चीज़ नाल असी डिवाइड किया सेम वैल्यू लैनी होंदी है बट जेड़ा साइन जे अंदर पॉजिटिव है तो तुसी नेगेटिव ना मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो जे इत्थे नेगेटिव है तो पॉजिटिव ना मल्टीप्लाई डिवाइड क्योंकि इत्थे हुण प्लस पिया सी तो मैं सेम वैल्यूज लैके माइनस नाल इनू रैशनलाइज कर रहा। देखो आ तो इदां ही लिख दिंदे आ √3 नाल आ गया 2 - 2√3 इत्थे आ गया √2 बार ए की बन गया a + b नाल आ गया a - b। देखो सेम ही चीज़ लिखी हुई है a इत्थे भी a वही है आ b है उत्थे भी b है सिर्फ एक प्लस और माइनस का फर्क है। तो किंदे कोल होंदा है a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। ठीक है इस चीज़ को एज इट इज़ लिख दिया √3 2 - 2√3 अपॉन √2। देखो 2 का स्क्वायर की हो गया 4 हुण आपां नूं इहदा स्क्वायर कटना है। इहदा स्क्वायर देखो कितना कट रहा है 2√3 × 2√3 दो बार लिख दिए 2 × 2 की हो गया 4 और √3 × √3 की हो गया 3 तो इहदा आंसर क्या आ गया 12। सिर्फ इहदी स्क्वायर की वैल्यू कटनी सी मतलब इन्हें दो बार ही लिख दिए 2√3 लिखा 2 नाल 2 मल्टीप्लाई होके आ गया 4 √3 नाल √3 मल्टीप्लाई होके की आ गया 3 तो 4 × 3 की आ गया 12 तो इत्थे मैं लिख दिता 12। आगे सॉल्व करते हैं ये आ गया √3 2 - 2√3 अपॉन √2 हुन 4 - 12 प्लस माइनस माइनस क्योंकि साइन बड़े वाले का 4 विचों 12 गए कितना आ गया 8 तो यह आ गया -8। ठीक है तो इस चीज़ में थोड़ा जा अगे सॉल्व करते हैं इत्थे क्योंकि हले भी अपने कोल आंसर सिंपलीफाइड फॉर्म में होना चाहिए हले भी √2 डिनोमिनेटर पे है इनू भी खत्म करना सी। तो देखो इन्होंने लिखा है √3 ये आ गया 2 - 2√3 अपॉन √2 नाल है -8। हुण क्योंकि अपने डिनोमिनेटर फिर एक रूट ही चीज़ पई है तो अपन रैशनलाइज करना पऊगा तो मैं मल्टीप्लाई विद √2 कर देना डिवाइड बाय √2 कर देना इत्थे क्या आ जाएगा आ √3 और आ √2 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया √6 नाल आ गया 2 - 2√3 और थल्ले R2 और R2 आपस में जो मल्टीप्लाई हो गए R√2 और R√2 एक क्या आ जाएगा 2 ते नाल की पे -8 ये आ गया √6 2 - 2√3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आ गया -16 से कुछ नहीं किया सिर्फ डिनोमिनेटर ही √2 सी
रैशनलाइज कर दिता, सानू पता है √2 है, √3 ना मल्टीप्लाई होके √6 आ जाएगा। आ चीज़ एज इट इज़ लिखी है। आ √2 ना मल्टीप्लाई होके की आ गया 2 नाल पे -8, तो 2 × 8 की होंगे 16 नाल माइनस का साइन आ गया। ठीक है, हम अगे सॉल्व करते हैं। √6 ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 1 - √3 ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ √6 ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ -16। ਆ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 - √6 upon -8 ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸੌਰੀ -√3 ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ √6। ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 - √3 upon 8 ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ √6। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੇ ਤਾਂ √3 ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦੂਗਾ ਔਰ 1 ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਹੈ 8 ਨਾਲ ਕੀ ਪਿਆ √6। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੇਬਲ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ sin 30 डिग्री plus tan 45 डिग्री minus cosecant 60 डिग्री upon secant 30 डिग्री plus cos 60 डिग्री plus cot 45 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ tan 30 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ, sin 30 डिग्री ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ 1/2, tan 45 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ 1 ਔਰ cosecant ਜਿਹੜਾ ਹੈ 60 डिग्री ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 2/√3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ secant 30 डिग्री ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਆ ਜਾਊਗੀ 2/√3। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/2 ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ cot 45 डिग्री ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 1। ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀ। sin 30 डिग्री ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/2 ਲਿਖਿਆ, tan 45 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1 ਲਿਖਿਆ, cosecant 60 डिग्री ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ 2/√3, ਫਿਰ secant 30 डिग्री ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ √3 2/√3, cos 60 डिग्री ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1/2 ਐਂਡ cot 45 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲਸੀਐਮ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ √3 ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਐਲਸੀਐਮ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2√3 ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ 2√3 ਐਲਸੀਐਮ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ √3, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2√3 ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ -4। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 2√3 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ √3, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ √3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ 1 ਆਇਆ ਤਾਂ 1 ਨੂੰ 2√3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 2√3, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2√3। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2√3 ਜਦੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2√3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ √3 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 4। ਸਿੰਪਲ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸੀਐਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 2√3। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 2√3 ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 4 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ √3 ਪਲੱਸ 2√3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 4 ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਰਾਂ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ √3 ਪਲੱਸ 2√3 -4 upon 2√3 और ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। मतलब उत्ते लिखोगे 2√3 और थल्ले की लिखोगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। पहला तो आप देखते हैं आ की पे 1√3 और 2√3 ऐड होके की आ जाएगा 3√3। सेम तरीके ना इत्थे भी क्या है 1√3 और 2√3 ऐड होके की आ जाएगा 3√3 और ए 2√3 और ए 2√3 कटे गए तो मैं इत्थे लिख रहा हूँ 3√3 -4 और थले आ गया 4 प्लस 3√3। अगेन डिनोमिनेटर की पे या साडे कोल एक टर्म पाई है जिंदे की पे रूट तो आपां नूं की करना पऊगा रैशनलाइज। मतलब रैशनलाइज किहदे नाल करांगे असी सेम चीज़ बट किहड़े साइन दे नाल ऑपोजिट जिथे प्लस पिया तो असी माइनस का साइन पावांगे। इत्थे आ जाऊगा 4 - 3√3 थले की आ जाऊगा 4 - 3√3।
तो आप रेशनलाइज कर दिता आ वाली चीज़ के नाल। हुण उपर वाली डिजिट को असीं बाद विचों सॉल्व करते हैं। पहला आप डिनोमिनेटर नूं सॉल्व कर लीए। देखो डिनोमिनेटर की पे है, आ तुहाडा ए हो गया, आ तुहाडा बी हो गया, सेम डिजिट ए और है बी, सिर्फ फर्क ही है प्लस और माइनस का। सानू पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थल्ले लिखिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, आप इन्हू अगे सॉल्व करते हैं। देखो हाले न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे असी, ऊपर वाली चीज में एज इट इज लिख रहे हैं, थल्ले वाली चीज ਨੂੰ सॉल्व कर रहे हैं। 4 ਦਾ स्क्वायर कितना हो गया 16। अगेन 3√3 ਦਾ स्क्वायर करना है, मतलब मैं 3√3 ਨੂੰ 2 बार ही लिखदा। ਜਦੋਂ मैं 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ 9 और आ वाला √3 और आ वाला √3 की बन जाएगा 3, तो ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 27। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ 3√3 ਦਾ स्क्वायर, मैं 3√3 ਨੂੰ 3√3 2 बार ही लिखा। 3 × 3 की हो गया 9, नाल √3 की हो गया 3, 9 3 की हो गया 27। तो मैं इत्थे सीधा लिख रहा 27। ठीक है, ऊपर वाली डिजिट में भी हम सॉल्व कर लेने। आ वाली चीज़ इहदे नाल मल्टीप्लाई और आ वाली इन्हां दोनों नाल। जदों 3√3 4 दे नाल मल्टीप्लाई होगा कि आ जाएगा 12√3। जदों 3√3 माइनस 3√3 दे नाल मल्टीप्लाई करूँगा तो 27। जदों 4 नाल मल्टीप्लाई होगा तो -16। जदों -4 माइनस √3 नाल मल्टीप्लाई होगा तो कि आ जाएगा +12√3। और थल्ले की है 27 माइनस 16, असीं माइनस करके देख लेंगे। 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा 7 विच 1 और 11, थल्ले आ गया -11। ठीक है, सिर्फ असीं सबट्रैक्ट किया और उत्ते ब्रैकेट खोल दी। हुण आ देखो आ दोनों की हो गए ऐड, और आ +12√3 या +12√3 की आ जाएगा 24√3। माइनस माइनस की होंदा है प्लस, बट साइन किंदा होगा वड्डे वाले दा, वड्डे वाले का केड़ा साइन है माइनस दा, तो आंसर होगा नेगेटिव। असीं 27 ਨੂੰ 16 विच ऐड करके देख लेने कितना आंदा है। ये आ गया 43, क्योंकि सानू पता है 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 1 कैरी हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 43, और थल्ले की आ गया -11। हुण सानू पता थल्ले तो नेगेटिव साइन होंदा नहीं, नेगेटिव साइन उत्ते भेज दिंदे आ। ये आ गया 24√3 -43/11। तो आ तुहाडा की आ गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किया, असीं सिर्फ टेबल तो वैल्यूज देखियां और थोड़ा जिहा सिंपलीफाई किया है। जो भी सानू लगूगा कि डिनोमीनेटर दे विच की है स्क्वायर रूट वाली चीज़ हैगी है, असीं रैशनलाइज करांगे, ब्रैकेट्स खोलांगे, साडे कोल आंसर आ जाऊगा। तो इस तरीके नाल तुसीं होर क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। तो असीं जिहड़े क्वेश्चन ट्राई कीते सीगे उनदे डायरैक्ट वैल्यूज यूज हो रही सीगियां, सिर्फ तुहानू टेबल की लोड़ पैंदी है। तुसीं अपना टेबल जिहड़ा प्रॉपर बनाना है। जो भी क्वेश्चन आऊगा तुहाडा पहला काम क्या टेबल बना लो, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तुसीं याद नहीं कर सकते। साइड ते टेबल बनाओ, वैल्यूज यूज करो, सॉल्व करो। हुण अगला क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। देखो की है, इफ साइन a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2, और दी है लिमिट दी है 0 डिग्री लेस a प्लस b लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, और a इज ग्रेटर दैन b, फाइंड ab। आ चीज़ का हले तो कोई मतलब समझने की लोड़ नहीं हैगी। सिर्फ इस चीज़ का मतलब यही है कि a और b की ने एक्यूट एंगल्स ने। ठीक है, और उन्हें बोलिया कि a जड़ा है वड्डा है b नालों, सानू कढ़ना की है a और b की वैल्यू कढ़नी है। हुण देखो सानू दिता की है, सानू दिता है साइन a माइनस b कितना दिता है हाफ दे इक्वल। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है साइन की वैल्यू हाफ कितने होंदी है। फटाफट टेबल दे विच वैल्यू देखो, तुहाडे कोल जिहड़ी साइन हाफ की वैल्यू है वो कितने आऊगी साइन 30 डिग्री ते, तो मैं इत्थे लिख दिता साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो मैं इत्थे दोबारा तो लिख रहा साइन a माइनस b कितने इक्वल है हाफ, जो कि कितने इक्वल सी साइन 30 डिग्री के इक्वल। तुसीं सिर्फ साइन की वैल्यू देखी है कितने हाफ होंदी है, वो तुहाडी वैल्यू 30 डिग्री सी। इतों साइन में साइन कटिया गया, इतों क्या आ गया a माइनस b की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। या फिर तुसीं इत्थे वो आपां एक क्वेश्चन कीता सी, की क्वेश्चन कीता सीगा, इफ b साइन b इज इक्वल टू साइन q दैन एंगल b इज इक्वल टू एंगल q कीता सी क्वेश्चन। सिर्फ वही चीज़ यूज हुई है। ये तुहाडे कोल की है b और आ की है q। अगर साइन b साइन q दे इक्वल है तो आपां की बोलदे सी b इक्वल टू q। आपां एक क्वेश्चन कीता सीगा, सिर्फ वही क्वेश्चन यूज होया। तो इत्थों दी आ गया a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। हुण अगों दी इन्हू इक्वेशन नंबर 1 दे दिता, एक चीज़ होर दित्ती हुई है सानू, की दित्ती हुई है cos a प्लस b किंदे इक्वल है हाफ दे इक्वल।
सानू पता है cos हाफ, फटाफट टेबल तो देखो कितनी वैल्यू होंदी है, होंदी है cos 60 डिग्री ते वैल्यू होंदी है cos हाफ। ठीक है, तो मैं इन्हू दोबारा लिख रहा, इन्हू लिखा cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। जिस तरीके नाल आपां क्वेश्चन कीता सीगा साइन वाला, एवें दा क्वेश्चन cos वाला भी है। if cos b is equal to cos q then angle b is equal to angle q। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ b plus a ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ a minus b equal to 30 डिग्री और एक हैगी अपने कोल a plus b is equal to 60 डिग्री। दो इक्वेशन ने ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ। ਮੈਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਦੇਖੋ प्लस b और माइनस b ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ 2a क्योंकि a और a ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2a और 30 और 60 ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 90 डिग्री। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 45 डिग्री। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਹੈ 45 डिग्री। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ a minus b is equal to 30 डिग्री ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 45 डिग्री a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ minus b is equal to 30 डिग्री। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ minus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 30 minus 45 डिग्री। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ 30 ਚੋਂ 45 ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -15 डिग्री minus b। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ b ਤਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 15। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 15 डिग्री और a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 45 डिग्री। ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਨ 30 डिग्री ਤੇ। ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਦਾ ਲੋਡ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। cos a plus b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਫ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ cos 60 डिग्री ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੋਲਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ if tan a plus b is equal to √3 tan a minus b is equal to 1 by √3 and 0 less than a plus b greater than less than 90 degree a is greater than b find value of a and b। अगेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਹੈ a और b ਕੀ ਨੇ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ tan a plus b ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ √3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ √3 ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। tan ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਂਦੀ ਹੈ 60 डिग्री ਤੇ √3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ sin b is equal to sin q then angle b is equal to angle q, cos b is equal to cos q then angle b is equal to angle q। ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੂਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ if tan b is equal to tan q then angle b is equal to angle q। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a plus b ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 60 डिग्री ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। अच्छा, सेकंड इक्वेशन अपने को एक चीज और देती हुई है कि देता है tan a minus b is equal to 1 by √3। फटाफट टेबल तो देखो 1 by √3 कदों आंदा है, जो तुसी देखोगे ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा वो आ रही है tan 30 डिग्रीज ਤੇ। अगेन फिर वही रूल if tan b is equal to tan q then angle b is equal to angle q। मतलब a minus b किंदे कोल आ गया 30 डिग्रीज है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ a plus b is equal to 60 degrees और दूसरी इक्वेशन की है a minus b is equal to 30 degrees। दोनों इक्वेशन ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ b और b ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਗਿਆ 2 times a 30 plus 60 कितना 60 plus 30 कितना हो गया 90 डिग्री। ਇੱਥੋਂ ਦੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 45 डिग्री। ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਆ ਗਿਆ 45 डिग्री। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ a plus b is equal to 60 डिग्री। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 45 डिग्री plus b is equal to 60 डिग्री। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 60 डिग्री minus 45 डिग्री, जो कितना आ गया b कितना आ गया 15 डिग्री। तो साडे कोल देखो दोनों ही वैल्यू की आ रही ने एक्यूट वैल्यू आ रही ने। a दी वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री और b दी वैल्यू की आ गई 15 डिग्री। सो असी आ देखिया जे तुहानू टेबल याद है तो तुसी ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो टेबल जिहड़ा है वो कभी भुलना नहीं है।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।